Okay, Mataji, perfect timing. Perfect timing. We can discuss key things. I'm so glad आप भी यहाँ हरे कृष्ण को participate. हम बिल्कुल ठीक हो. हम लोग क्या कर रहे हैं? Discussion कर रहे हैं प्रभु है ना? We are discussing कि सेवा क्या होती है? सेवा. What is सेवा? What is the intention behind सेवा? Intention क्या होती है? सेवा. सेवा क्यों करी जाती है? Yes, जिसकी सेवा है उसकी very good. और कोई? Very nice. What is क्यों कर? Intention क्या होनी चाहिए सेवा? What is why do we do सेवा? To serve devotees, हाँ? But why? प्रभु जी वो हमारी रियल पोजीशन है. हाँ, very good. हाँ, very nice. भक्ति में आगे बढ़ने के लिए very good. It purifies us. हाँ, हमारा true nature है to serve और it purifies us. Very nice. और क्या intention होना चाहिए? Connect with God हो गया माता जी ने बोलते. और byproduct is breaks your ego. How does it break our ego? When you serve, you are humble because you are putting someone else above you. So that means yeah, very nice. Or kuch? What is the intention behind seva? It's also a way to express our love. Yes, very good, very good. Yes. Can we show our love to Krishna? That is the only way. I'm talking about general seva. Doesn't necessarily have to be just to Krishna, but seva. But even for children, like just you love your baby, you buy something, you give them food. That's an expression. Very nice. Very good. That makes sense. Or क्या है? What else? It gives us happiness to serve. It gives us happiness to serve. So if it gives me happiness to serve, that means I'm doing service to be happy, huh? So it should be selfless. Just happen. Like, I know. So that's it happens. That's a byproduct, you know. But if you are doing so, do we do service to be happy or no? No, yeah, that's not the intention. So what is the mood? अगर हमें happiness भी नहीं चाहिए, I'm not talking about Krishna. I'm talking about devotees. अगर मैं happiness चाहिए, what should be our mood? What is the mood? नहीं mood क्या होना चाहिए? वो हम this is what we get. What should be our mood for devotees? Selfless. What does that mean? Devotee की सेवा ऐसे करो जैसे हम भगवान के कर रहे हैं. हाँ ठीक है. Very good. Everything is connected to Krishna ultimately. Even if अगर वो बंदा कृष्णा से connected नहीं है, that means we should not do service. Is that? everything is connected to Krishna. That's correct. Or not, we are actually doing service just to please and satisfy him. Because if we are doing service for any devotee community or family, but it is ultimately connected to Krishna because Krishna will be pleased. So, no, very nice. What should be our mood when we are serving a devotee? हम लोग अगर ये देखते हैं कि because that devotee is connected to Krishna, should that be our intention? There is no right or wrong answer, by the way. I'm not. मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग और थोड़ा I want all of us to go more deeper into this concept of seva. हम लोग क्यों कर रहे हैं सेवा? Why do we do this? एक डिवोटी है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन if devotee will be pleased, then Krishna will be pleased. Okay, तो उसमें भी हमारा ही कुछ वो है फायदा है. I know. I'm not selfless. I think. But how is it selfless? How can we have a selfless service? जैसे for example, कुछ नहीं मांगते हैं. हाँ, ये so. That's really good. I think we don't want selfless का क्या मतलब है? We don't want anything in return, है ना? लेकिन सच में ऐसा होता है कि just हाँ प्रभु. हम नोटिस करें मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती है बिना कुछ करे. जब वो एक बीमार पड़ जाए कुछ नहीं होता घर में करने के लिए, तो हम out of that respect या फिर concern उनके लिए कुछ करते हैं. I think वो सेवा हो सकती है बीवी के लिए. माता जी का यार माता जी कैसे कर रही है? Okay, नहीं, that's good. The reason why is keep thinking कि हाँ ठीक है. I want, that selfless का मतलब होता है कि I don't want anything in return. Do we do that? Like that's माँ करती है अपने बच्चे के लिए. I'm talking about us. Do we do that? जब तक
माया में है तब तक पॉसिबल नहीं है। माँ एक्सपेक्ट करते हैं जब वो बीमार हो तो हम करें, अच्छा उनको पता है कि ये बेटा हमारा काम करता है हमारे लिए कुछ नहीं करता है या उनके अगेंस्ट कुछ करता है, तो वैसे बेटे को वो भी प्यार नहीं करेंगे जो मतलब पता है कि ये तो हमारा दुश्मन है। तो सेल्फलेस को जब तक हम माया में पॉसिबल है। That's a good point. That's a very good point. Very good point. So, अगर selfless, पूरा selfless possible नहीं है, तो what's the next step? So transcendental desire, I think this is closer to self, मतलब not selfless actually, but जैसे if I am doing just to get bhakti, more bhakti, or go deeper in bhakti, or just to please Krishna, that's how also I will get bhakti. हाँ, bhakti. No, bhakti. I'm not talking about bhakti. I'm just talking about seva. So, and I'm talking about. अच्छा ठीक है. Now we spoke about devotee, है ना? Just get rid of devotee. Let's see. Let's suppose आपका neighbor है, or suppose Aussie है, Australian, completely Australian, and he's half drunk right now. Okay? Comes here, and he wants to talk. No, he has got no one to talk to. उसकी हमें सेवा करनी है. Non-devotee has got nothing to do with Krishna consciousness. क्या हमारा intention? What should be our intention? हैं? घर में नहीं घुसने. आप लोग भी बोल सकते हो. आप लोग अगर आप लोगों को कुछ लगता है, you can talk as well, है ना? Unmute करके. So, question is, if someone is a non-devotee, what should be our intention when we serve them? Prabhu, that time also we just try to give or connect him anyhow to Krishna, or just to give them Krishna consciousness. No, that's good. But what should be our intention? Should be to connect him with Krishna. But give them Krishna consciousness anyhow, like offering prashadam. Yes. Okay, fair enough. Offering prashadam. Yes. और क्या? What should be our intention? Beautiful, yeah. We all have, लेकिन सबके पास सबके वो भले ही दारू पी हो उसने, लेकिन कृष्णा सबके अंदर है ना? कीड़े मकोड़े के अंदर भी हैं. Okay, very good. और क्या? What else? मेरा प्लम्बर आया था. हाँ. Christian. हाँ. He really cares about his wife's well-being. हाँ. मेरी अप्रोच ये थी कि जैसे ही वो आ रहा है वो मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरा मूड था कि मैं उसके कैसे कर सकता हूँ while he is in her how's your wife, उसके mind state कैसी है, not just asking a question and then moving on, actually getting involved to asking probing questions. उसने मेरे को कुछ बोला तो मैंने उसको वो डिस्कस किया फिर आगे तो and I think he appreciated that. तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा माइंडसेट ये था कि जो उसको अभी चाहिए या rather than you don't do the seva ki what you want to do, you do what is actually needed good for that person. और उसके लिए उसके उसको बोलना था वो इम्पोर्टेंट था, Beautiful. सेवा, yes, that's a very good point. सेवा, sorry, जो आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा शायद ना, तो प्रभु बोल रहे हैं कि उनके घर पे कोई आया था and not as a Christian, had nothing to do with Krishna consciousness and stuff. तो इन्होंने उनसे ऐसे बात करी जो उनको पसंद थी, जो वो whatever the person's need was at that time वही बात करी, ऐसे सर्व करने की कोशिश करी. तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है आप लोगों के डिस्कशन से. सेवा मीन्स ये empathy, but seva means you do something that has got nothing, like it is nothing to do with you. It's about all about other person. It's not to do with us. It's all about other person. Now, अगर मैं ऐसे बोलूं, what now? Let's go more deeper into this. हरे कृष्णा माता जी, आप फिर आज गोली दे गए. आप मेरे को आपसे पूछना था क्वेश्चन. कोई नहीं, याद दिलाना मुझे ना, एंड में माता जी से पूछेंगे. Okay, so माता जी हमारा डिस्कशन चल रहा है what is सेवा. So now I want you to go one step deeper now. ठीक है? I'm so sorry, this class is going to be like this. Now मेरे सामने एक डिवोटी है और एक नॉन डिवोटी है. दोनों को you're serving both. ठीक है? एक डिवोटी एक नॉन डिवोटी है. किसको सर्व करने से, एंड दिस वेरी सोच के बताना, जल्दी मत बोलना ना, आराम से सोचना. आपके पास एक सामने डिवोटी बैठा है, सन्यासी है, और एक है जो नॉर्मल सड़क पे बैठा होता है आदमी ना, भिखारी. उन दोनों को आपको खाना खिलाना है. किसको खाना खिलाने से आपको ज्यादा सुकृति मिलेगी? नॉन डिवोटी से.
नॉन डिवोटी से ओके, जिसको ज्यादा जरूरत होगी सेम मिलेगी। और कोई देखो एक ही इसमें तीनों आ गए है ना, विदाउट डिफरेंशिएशन सेम मिलेगी। अच्छा ठीक है, लेट्स अब तीनों को एक एक करके देखते हैं। सेम जो बोल रहा है, क्यों सेम है माता जी? अच्छा आप कौन बोल रहा था सेम? प्रभु आप बताओ। भगवान के लिए सभी सेम है, बिल्कुल सही। और क्या आपके? उन्होंने भी यही बोला है कि ब्राह्मण की क्वालिटी होती है पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना, यस वेरी गुड। और ब्राह्मण, हाँ वो ब्राह्मण मतलब कि ना ब्रह्म जानती से। हाँ कृष्ण है। हाँ बोलो बोलो। जो सर्व करना चाहिए उसको तो समदर्शन होना चाहिए दोनों। हाँ लेकिन अगर हम कहते हैं कृष्णा किससे ज्यादा प्लेजर होते हैं, ये है आपके पास? नहीं, वो सुकृति ज्यादा किसको मिले? कृष्णा की तो बात ही नहीं हुई, सुकृति किससे ज्यादा मिले? कृष्णा को किससे प्लेजर है वो डिफरेंट। नहीं, सुकृति किसको ज्यादा मिलेगी? कृष्णा पे भी आएंगे हमें, अभी कृष्णा पे भी आएंगे। प्रभु जी नॉन डिवोटी ना कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करती है किसकी कर रहे हो। तो नहीं। हाँ मित्र प्रभु। हाँ, नॉन डिवोटी से करने से मुझे ऐसा लगता है ज्यादा मिलेगी। उसका रीजन ये है कि हम एक और जो कृष्णा के पास नहीं है हम उसको ले जा रहे हैं, एक और ऐड क्या कर रहे हैं। बात है, क्या बात है मित्र प्रभु, आप तो घर पे बैठे बैठे सिक्सर। हाँ वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, है ना, वेरी गुड। और तीसरा आंसर क्या था? व्हाट वाज द थर्ड वन? जिसको ज्यादा जरूरत है। हाँ वो किसने बोला था? एक्सप्लेन हाउ। हाँ बोलो प्रभु। हाँ हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और हमारे और सारे हर उसमें भी सब जगह यही होता है ना, क्रिश्चियनिटी में भी यही है। अच्छा ठीक है, अब तीनों आप लोगों के सामने है। व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? लाइक अब हम लोगों ने तीनों सुन लिए हैं, अब वापस लेट्स डिस्कस अगेन। किसको ज्यादा स्वीकृति मिलेगी? आप लोगों ने सबके व्यू सुन लिए, अब बताओ। नॉन डिवोटी को। और कोई? जिसको ज्यादा जरूरत है उसकी, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको वो डिवोटी सेम। पार्टी चेंज हो गई लेकिन आंसर चेंज नहीं हुआ है वही थीम। ओके भाव भी जैसे आपके भाव है। ओके, जो इन्होंने बोला वो तो है ही, हाँ, लेकिन नॉन डिवोटी। हाँ ये अनदर डायमेंशन है यहाँ पर, है ना? इट्स नॉट अबाउट समवन एल्स, इट्स अबाउट यू। सो माता जी बोल, इट्स वेरी गुड पॉइंट। हमारी क्या है, हमारा क्या भाव है सेवा करने में, सुकृति उस पर डिपेंड करेगी। अगर आप सेवा करेंगे, हो सकता है आपको ये लालच आ जाए सेवा करने में कि हमको पलट के कुछ ये दे दे। वेरी गुड। तो अगर आप नॉन डिवोटी करेंगे तो प्रभु ने बोला कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप कुछ किसी भी अच्छे भाव से कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सुकृति तो आपको मिल ही रही है, लेकिन साथ में उस डिवोटी को आप कृष्णा से जोड़ रहे हो। वेरी गुड, यस। अगर हम जैसे भिखारी को कहने से तो बहुत भूखा प्यासा है, लेकिन वो स्ट्रांग हो गया and then he's doing some bad deed या जो भी है, तो आपने उसको सर्व किया, उसको स्ट्रांग बनाया, तो वो पात्र पे भी तो डिपेंड करता है ना? नहीं वो आई थिंक आप बात करो कर्मा की, कि वो आपने उसको खाना दिया, उसको जो स्ट्रेंथ है उसने गलत यूज करा, उसका हमें कर्मा मिलेगा। सुकृति कैसे डिफाइन करेगा? ओह सुकृति मतलब कि आशीर्वाद। हाँ, you can say what is, अच्छा let's that's a good point. Let's, what is सुकृति? आप लोगों को क्या लगता है what is सुकृति? Pious credits, but not पुण्य. I'm not talking about पुण्य, I'm talking about pious credits. Pious credits क्या होता है? जो आपकी इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करे, है ना? पायटी क्या करती है? पायटी हम लोग को नेगेटिवली माइंड पे इम्पेक्ट करती है। पायटी माइंड पे कैसे इम्पेक्ट करती है? हम लोग जैसे मैंने अनाथ आश्रम खोल दिया, है ना, 10 लोगों ने बोल दिया आपका अनाथ आश्रम है, तो मेरी पायटी बहुत हो गई, लेकिन दम्भ आ गया मेरे में, यार आई एम डूइंग सो मच वर्क, है ना, सब दिखावे के लिए हो गया। सो सुकृति का मतलब होता है कि when you're talking about pious पुण्य नहीं, pious credits, like and it what it does, it gives us humility to serve, है ना, वो वाली सुकृति की बात कर रहा हूँ। और serve the Lord ultimately, वो वाली सुकृति की बात कर रहा हूँ। So now सब लोगों ने जो बोला बिल्कुल ठीक है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको एनालाइज करा गया है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मंदिर में, मैंने खुद ने देखा है, मंदिर में सन्यासी बैठे हैं, ठीक है, सन्यासी भी बैठे हैं और नॉर्मल डिवोटी भी सर्व हो रहे हैं। तो एक पर्सन ने
डिवोटीज को सर्व करना छोड़ के सन्यासी को सर्व करने गया, बिकॉज ही इज माय गुरु महाराज, आई हैव टू सर्व हिम। क्यों? गुरु महाराज के पास और कोई नहीं है, दैट मेक सेंस। नहीं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, नहीं मेरे को इनकी सेवा करनी है, मेरे को उधर नहीं सेवा करनी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला नो, यू विल गेट मोर पायस क्रेडिट इफ यू गो एंड सर्व दैट, क्योंकि व्हाट यू आर गिविंग हिम इज कृष्णा प्रसादम। कृष्णा प्रसादम हमारे लिए क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग भक्ति में रहें, हम भटके नहीं। सन्यासी इज ऑलरेडी ऑन द पाथ, ही कांट, वो डिबेट नहीं होगा। तो आप उसको जब सर्व कर रहे हो, you will still like Krishna will still be happy with you, but Krishna will be more happy if you are connecting someone who has got nothing to do with Krishna consciousness। तभी अभी देखो मेरे जो गुरु महाराज अभी आ रहे हैं, 24th को उनका प्रोग्राम है, और वो किस लिए है? He just want, हम लोग के लिए स्पेशल मैसेज क्या है? Bring people who are not into Krishna consciousness as well, please please please। क्या जरूरत है? वो सन्यासी हैं, he is definitely going back home to Godhead। अगर उनको और सुकृति चाहिए होती है, और इसमें सुकृति होती सीनियर डिवोटीज को सर्व करने से, तो what we should have done, he should have done, no no, I'm only giving classes to sannyasis and brahmacharis, है ना, मैं क्यों दूं किसी और को क्लास? लेकिन कोई भी महाराज, nobody talks about preaching to the only congregations only. What they talk about is bring more people in, bring more people in। क्यों? Because that pleases Krishna। भगवत गीता में बोला गया है that pleases Krishna more than anything else, है ना, that pleases Krishna more than anything else। Now ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बोला है? क्योंकि कई बार हम लोगों को भी लगता है, we think कि यार मैं सर्व कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई नया डिवोटी बैठा है और मेरे सामने कोई सीनियर डिवोटी बैठा है, तो हमारे पास जो है, अगर मेरे पास एक ही चीज है, we will serve it to senior devotee, thinking that oh you know what, you have to have it, you know, because this is from me, I want you to have it because I want to get some sukriti, you know। So ये जो concept है हम लोगों को निकालना पड़ेगा। We have to get this out of our head, because this is not about किसको आप सर्व कर रहे हो। if आपके पास प्रसाद है ना, वो प्रसाद आप जिसको भी सर्व करोगे ना, you will get सुकृति। बट जिसको ज्यादा जरूरत है, आप उसको सर्व करोगे ना। ज्यादा जरूरत किस लिए? क्योंकि he needs to go back to God। आप उसमें हेल्प कर रहे हो। कृष्णा will be very pleased। So thank you very much, it was really good discussion। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है ना। दूसरी चीज मैंने दूसरी चीज मैंने देखी है। हाँ, दूसरी चीज है, what is the one thing that Krishna does not allow in Golok Vrindavan? One quality, yeah, you should say, pride, envy, और कोई? Pride, envy? प्रभु जी वो राम कौन से जगन्नाथ प्रभु ने बताया था ना, पगली, पागल, हाँ, PAGLE, हाँ। तो प्राइड, एंगर, G, greed, L, lust and envy। तो कौन सी एक इनमें से एक चीज है जो कृष्णा, बाकी सब बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं, वो क्या है? अहंकार, हाँ। एनवी। कृष्णा कैन नॉट हैंडल एनवी। आपको पता है कोई एग्जांपल है हमारे जो एनवियस था एंड कृष्णा पनिश्ड हिम? एनवियस शिशुपाल। दुर्योधन वाजंट एनवियस, एक्चुअली एनवियस था, लेकिन ही वाज मोर प्राउड, और यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी? Jealousy में we feel when other person is flourishing, then we feel bad, but we don't want to do anything bad with them. Means we just feel bad कि we don't have that thing, you know, what other person is flourishing. Okay. But in enviousness, we go to next level, next in the negative level. So we also start doing planning, plotting how to get that person down, put them down. Okay. So what is that? That's envy. और jealousy क्या है कि बस हमें चाहिए। There were three friends, है ना, वो तीनों के तीनों तपस्या करते हैं, they all get one boon each। वो क्या था उनका? He can ask one thing
पहला बोलता है कि आई वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, तथास्तु, एंड ही डिसअपीयर्स। दूसरा बोलता है कि उसको क्या चाहिए, बोला आई वांट टू बी द मोस्ट हैंडसम पर्सन लिविंग इन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द होल यूनिवर्स, कहता है तथास्तु, एंड ही डिसअपीयर्स। वाले को व्हाट हैपेंड? नेट वाला बंद करूं? नेट वाले को बंद वही नहीं, देखो बहुत बड़ी बात है। एनीवे, सो दूसरे बंदे को मिला, वो भी गायब हो गया। तीसरे बंदे को बोला कि अब ये जो दो चीजें इन्होंने मांगी है तुम नहीं मांग सकते, तुम्हें यू हैव टू आस्क समथिंग एल्स। तो उसने क्या मांगा, इन दोनों को वापस यहाँ ले आओ जैसा पहले थे। दैट इज कॉल्ड एनवियसनेस। जेलसी में क्या होता है कि मेरे किसी और के पास है, मुझे भी चाहिए। किसी के पास $1 मिलियन है तो आई विल वर्क हार्ड टू गेट $1 मिलियन, थोड़ा ज्यादा, 2 मिलियन टू बी बेटर। जेलसी में क्या है, मेरे पास $100 है, उसके पास $1 मिलियन है, तो किसी तरह उसको $1 मिलियन का नुकसान करा दो ताकि वो मेरे से भी नीचे आ जाए। दैट्स कॉल्ड एनवी, सॉरी, दैट्स कॉल्ड एनवी। सो इट्स अ डिफरेंस। नाउ एनवी भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एनवियसनेस, क्या आपको क्या लगता है, डिवोटी कैन बी एनवियस? डिवोटी होते हैं एनवियस? कैसे होते हैं? हाउ डू वी नो कि डिवोटी इज एनवियस? How do we know? माता जी क्लास में सुनाता है, it was very good example. She said कि how to check your, like, if you have envy or not. She said if somebody is praising other person, and just think that time what you are feeling. You are feeling good, or you are feeling bad, or you are do not feeling good at all. So you have to go and deep down and meditate ki what is actual, you know, what is your actual thinking. You are actually feeling good, or sometimes we say na it's that devotee is good, but you know, but she do that also, you know. So that's how we try to cover up, but it means we are not feeling good about that. Three Idiots किसने देखी है? सब नहीं देखी होगी। Three Idiots में वो नहीं था कि दोस्त जब फेल हो जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाता है तो ज्यादा दुख होता है ना? तो हाँ, तो एनवीज हम लोग को कैसे, और एनवी अगर हमारे पास है तो लिटरली वी हैव एक्चुअली नो चांस इन भक्ति। आई शुडंट से नो चांस, वी स्टिल हैव चांस बट लेस चांस। हमारे पास मुश्किल हो जाएगा, हमारा जो पाथ है बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड जैसे माता जी ने बोला ना, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उनमें से कौन मुझे पसंद नहीं है। और ऐसा नहीं कह रहा देयर हैज टू बी समवन, पसंद नहीं का मतलब ये नहीं कि मेरे को नफरत है, पसंद की मतलब यार ठीक है बैठ गया तो बैठ गया, लेकिन आई वोंट पुट एन एफर्ट कि उसके साथ बैठ ना। अगर हमारे नजर में ऐसा कोई बंदा है और कोई है तो हमें ये सोचना चाहिए कि वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, एम आई एनवियस ऑफ दैट पर्सन और एम आई जस्ट जेलस? जेलस है तो यू कैन सेलिब्रेट, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एनवी है, सो व्हाट डू वी डू? अगर एनवी है, अगर आपको पता चल जाए यस आई एम एनवियस ऑफ दिस पर्सन, व्हाट शुड वी डू? व्हाट्स द tod of envy? In front of everybody. Appreciate them a lot in front of everyone. And also we can ask forgiveness to that person. Okay. Prabhuji, chanting is one of the best solutions. प्रभु ये ना आप यहाँ पर बैठ के ना जूम पे ही बात करा करो। Very nice. पूरा मूड में Mitul Prabhu. Hani, very good. That's true. Chanting is the one that can actually, when you chant ना, अगर आपके दिमाग में बंदा आता है, what you do is you pray to Krishna, the Krishna give this person more bhakti and give me satisfaction in looking at that person having more bhakti than me. हमारे साथ क्या होता है? सब लोग साथ में आए, एक बंदा बहुत आगे निकल रहा है, दूसरा नीचे रह रहा है, ये कैसे जा रहा है? ये तो बहुत तेज है, और हम लोग बोल भी देते हैं तो यार बहुत मंदिर क्या बात है, बहुत मंदिर जाना पड़ा उसको, जब देखो मंदिर है क्या है? what does that do? अगर ऐसा होता है, what does that do? What is it? What's happening? नहीं, sometimes we are actually genuinely appreciating, है ना, genuinely यार प्रभु मंदिर जाते हो, मेरे को भी जाना है ना, but sometimes जब देखो मंदिर यार क्या बात है, आप तो बहुत रॉकेट के साथ जा रहे हो, क्या हो रहा है? इधर आशीष प्रभु को लोग बोलते थे, प्रभु यार ये क्या है,
मतलब आप शुरू में ही 16 से ही शुरू करा, वहां तक जाओगे, 64 तक जाओगे, ऐसे बोल रहे हैं। सो वी शुड वॉच कि वेयर वी आर गोइंग, हाउ वी आर गोइंग, है ना। नाउ एनवी का तोड़ है, वी शुड प्रे टू कृष्णा एंड वी शुड प्रे फॉर ईच अदर। अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि you would find someone who is envious of you. This is another side. How to take care of that? अगर आपको पता चल गया है कि somebody is envious of you, what you should do? What should you do? You should pray for them. Yes, pray तो हमेशा काम करेगी. Very good. Pray करो और प्रसाद खिलाओ, और make sure that you bring that person in your chanting. During your chanting, you say, Bhagwan, I know that I'm struggling, but I know this person is really gonna struggle because of their envious nature. Can you help him? Can you help this person? And trust me, I'm not joking. Yeah, this is the Bhanu Swami Maharaj ki vakya hai. He says it works. You pray for that devotee. अगर आप किसी से envious हो, you pray for them and ask Krishna to take that envy from me. अगर कोई आपसे envious है, तो भगवान वो envious है, उसको पता नहीं है अभी, है ना. They don't know how much they're gonna struggle in bhakti if they continue to do this. So what we do is we actually pray for them. है ना? Now there are few points. Elevation. अगर हमें भक्ति में आगे जाना है, there are few things that we need to do. है ना? One is no envy, no judgment. है ना? That's very hard. हम लोग, I'm not going to talk about that now because time नहीं अभी. And दूसरों का प्रोग्रेस हमारे प्रोग्रेस से ज्यादा रखने का, है ना. मंदिर में जो सबसे सीनियर डिवोटीज अब मैं देखा है मैंने, जैसे नंदोलाल प्रभु हैं, they will stand at the back. सब लोग दर्शन करने के लिए आगे भाग रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो एक बंदे को मेरी जगह मिल जाएगी जिसको दर्शन और अच्छे हो जाएंगे. Can you see the difference? This is called elevation in bhakti. अगर आपके भाव में ये आ रहा है, आपने देखा होगा ना, इंडिया में सब लोग दर्शन देने के लिए भागते हैं. Nobody cares about other people. मम्मी को मैं लेके गया था and I was screaming at people. मेरी मम्मी, people उनके पाँव पे पाँव रखा, ऊपर चढ़ गए एकदम. Literally there was this guy he had his knee on my mom's shoulder, standing like to take darshan. And that's not elevation in bhakti. Is that elevation in bhakti? Srila Prabhupada के जो गुरु महाराज थे वो कहते थे, you should not be eager to take darshan of Krishna. You should be eager to do things that Krishna wants to see you. है ना? और वो कैसे होगा? ये सीनियर डिवोटी जिनकी मैं बता रहा हूँ. नंदलाल प्रभु पीछे खड़े होते हैं क्योंकि he wants other people to stand in front so that उनको अच्छे दर्शन हो. Sometimes he will stand outside the temple. मेरे को नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन इनको हो जाए, एक और बंदा अंदर चला जाए. You know what I mean? So the reason I'm saying is so that it's easier for it. ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि you know कि ऐसा कभी होता ही नहीं है. We have seen it. We have seen that kind of thing. So this is how elevation. So envy का हटाने का एक और ये तरीका है, और jealousy को हटाने का एक और तरीका है कि if someone is progressing better than us, we should promote them more. Envious हो रहे हो, so you should pray कि उसकी भक्ति और आगे जाए, and Krishna will take away all the things from your heart. Okay. All right. That's all I wanted to share. Okay, let's look at glories of. आज के दिन की उक्ति हरिनाम की महिमा पर, जो कि हरिनाम चिंतामणि के अध्याय 2 श्लोक संख्या 34 से ली गई है. नाम सम वस्तु नाये भव संसारे, नाम से परम धना कृष्ण भंडारे. इस भौतिक जगत में श्री हरिनाम के समान कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है. कृष्ण के रत्न भंडार में नाम ही परम धन है. तो भगवान श्री कृष्ण का जो भंडार है, खजाना है, उसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है भगवान श्री कृष्ण का नाम. और जो सबसे मूल्यवान वस्तु होती है उसको व्यक्ति कहाँ रखता है? तिजोरी के अंदर. और एक लॉक दूसरा लॉक अच्छे से अंदर रखता है ताकि उस खजाने तक कोई भी ऐसा वैसा नत्थु खैरा पहुँच ना सके. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना, जो मालिक होता है, मान लो उसने दारू पी हुई है, तो उसको इतना होश नहीं रहता उसको.
तो क्या करता है, तिजोरी खोल देता है, कहता है ले लो ले लो ले लो, इसको मेरा पैसा लेना, ले लो ले लो। दारू भी उसने, दारू में धुता है वो। तो जो वो चीज़ सबसे ज़्यादा छुपा छुपा कर उसने रखी थी, वो दारू के नशे में क्या करता है, वो बांट देता है वो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब वो धुत हुए, किसमें, श्रीमती राधा रानी के प्रेम में जो धुत हुए और आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वही तिजोरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान गहना था, रत्न था, उनका नाम उन्हें खोल दिया। कहते ले लो ले लो ले लो, ये कृष्ण का नाम ले लो ले लो, सब ले लो, मैं अकेले नहीं बांट पाऊंगा, मुझे औरों को भी ज़रूरत है, आ जाओ तुम भी बांटो, आ जाओ, तिजोरी मैंने खोल दिया, ले लो बांटो बांटो बांटो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आकर के, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही हैं, तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम में जब वो धुत हो गए, पूरी तरह से intoxicated with the divine love, Srimati Radharani is distributing that treasure which is very very confidential, and that is to chant Hare Krishna Mahamantra ki jai, Shri Prabhupada ki jai। हम सब वैष्णव Can you read this, bro? Can you see it, sir? Big enough? The Chaitanya Mahaprabhu's pastime for calling the animals of Varikanda forest or to chant and dance. When the Lord passed through the country forest, chanting the holy name of Krishna, the tigers and elephants seeing him gave way. When the Lord passed through the jungle in great ecstasy, flocks of tigers, elephants, rhinos, turtles, and boars came, and the Lord passed right through them. Balabhadra and Bhadra were very afraid to see the animal, but by Sri Chaitanya Mahaprabhu's influence, all the understood to one side. One day, a tiger was lying on the path, and Sri Chaitanya Mahaprabhu walking along the path in ecstatic love touched the tiger with his feet. The Lord said, "Chant the holy name of Krishna." Tiger immediately got up and began to dance and chant Krishna, Krishna. Another day, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was bathing in the river, a herd of maddened elephants came there to drink water. While the Lord was bathing and murmuring the mantra, the elephant came before him. The Lord immediately splashed some water on the elephant and asked them to chant the name of Hare Krishna. The elephant, whose body was touched by the water, splashed by the Lord, began to chant Krishna, Krishna, and dance and sing in ecstasy. Some of the elephants fell to the ground and some screamed in ecstasy. Seeing this, Balbhadra Bhattacharya was completely astonished. सबसे पहले दिमाग में आएगा दैट्स रबिश, हाउ कैन एनिमल से दैट, है ना, ऐसा लगता है ना। So how do we prove it? We can't prove it. Actually, we can. Look at this. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. अरे सुंदर करे बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। That's not बुझा जाए ना केन, अरे सुंदर करे बोलो हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। That's a real voice. हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, वो राम राम बोलता था, पूरा दिन राम राम करता था। very good. गुड्डी बेटी बोलता था, तो बोलता था गुड्डी बेटी उठ जा, राम राम। Wow. देखो पैरेट में ना, पैरेट के तो पैरेट्स की तो टंग है ना, दे कैन लर्न, बट ऐसे पक्षी है ना, दे डोंट हैव, दे आर एक्चुअली वेरी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि नहीं यार, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो करा है, इट्स नॉट मनगढ़ंत नहीं है। साइंटिफिक वर्ल्ड में हमें लग रहा होगा कि नहीं यार रबिश, किसने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, वो क्या है ना, लेकिन देखा, बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा, एंड देयर आर अदर पीपल हु हैव सीन इट। Somebody wants to read?
While passing through the jungle, once all the men came doves. All news came to him, hearing the Lord's great vibration, all the winds, doves, followed him left and right. While reciting a word with great philosophy, the Lord panted them. Blessed are all these foolish. डोज, उसका हिरन का जो बच्चा होता है ना, उसको डो कहते हैं. Blessed are all these foolish deer, because they have approached the son of Maharaja Nanda, who is gorgeously dressed and is playing on his flute. Indeed, both the does and the bucks, No, actually, bucks are the male. bucks Male hiran. worship the Lord with looks of love and affection. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was passing through the jungle, 5 or 7 tigers came. Joining the deer, the tigers began to follow the Lord. Seeing the tigers and deer following him, Sri Chaitanya Mahaprabhu the land of Vrindavan. He then began to recite a verse describing the transcendental quality of Vrindavan. Vrindavan is the transcendental abode of the Lord. There is no hunger, anger, or thirst there. Though naturally inimical, both human beings and fierce animals live together. They are in transcendental friendship. Keep reading. When Sri Chaitanya Mahaprabhu said, chant Krishna Krishna, the tigers and deer began to dance and chant Krishna. When all the tigers and does danced and jumped, Balabhadra Bhattacharya saw them and was struck with wonder. Indeed, the tigers and deer began to embrace one another, and touching mouths they began to kiss. When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw all this finally led the animals and continued on his way. Various birds, including the peacocks, saw Sri Chaitanya Mahaprabhu and began to follow him, chanting and dancing. They were all maddened by the holy name of Krishna. When the Lord loudly chanted Hari Bol, the trees and the creepers became jubilant to hear him. Thus, all living entities, some moving and some standing still in the forest of Jharkhand, became maddened by hearing the holy name of Lord Krishna, vibrated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Imagine हम लोग ये नए लोगों को सुनाए, वो दूसरे दिन आएगा नहीं, बोला तुम लोग क्या है फेरी टेल सुना रहे हो. यस प्रभु, एक बार रिपीट करना, ये पूरा ये स्लाइड बहुत अच्छी लगी, दोबारा सुनना है. प्रभु, whoever wants to read. मैसेज काफी स्ट्रांग है. When Sri Chaitanya Mahaprabhu said, chant Krishna Krishna, the tigers and deer began to dance and chant Krishna. When all the tigers and does danced and jumped, Balabhadra Bhattacharya saw them and was struck with wonder. Indeed, the tigers and deer began to embrace one another, and touching mouths they began to kiss. When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw all this fun, he began to smile. Finally, he led the animals and continued on his way. Various birds, including the peacock, saw Sri Chaitanya Mahaprabhu and began to follow him, chanting and dancing. They were all maddened by the holy name of Krishna. When the Lord loudly chanted Hari Bol, the trees and creepers became jubilant to hear him. Thus, all living entities, some moving and some standing still in the forest of Jharkhand, became maddened by hearing the holy name of Lord Krishna, vibrated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thank you, Mataji. Beautiful. इसमें जो मैसेज होगा इसमें ऐसा लगता है कि तीन वर्ड होगा. Golok Vrindavan is like that. Exactly right. Golok Vrindavan is like that, where everything speaks, everything is actually there is कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो निर्जीव है. पत्थर भी हैं, they speak, they dance, they talk. है ना? We all have a specific position Golok Vrindavan में, हमारी है. And guess what? जो हमारी सेवा जो हम कर रहे थे भगवान के लिए, you know who is doing it right now? No one. No one is still there. He is waiting for us to come back and we do that service. Whatever it is, that service is a specific service for me. आपकी भी एक सर्विस है, आपकी भी एक सर्विस है, आपकी भी एक सर्विस है. There is something every one of us we were doing. कृष्णा के लिए हम कर रहे थे, वो हमारे अलावा कोई नहीं करता. Nobody. और जब तक हम वहां वापस नहीं आएंगे तब तक उस सर्विस को कोई नहीं करेगा. कृष्णा बोलता है nobody touches this.
Anup Prabhu's job. He'll come, he'll do it. So it's our duty, it's our responsibility. It's actually, you know what, we need to have this in our head that we have to go back to God. This is not very long. हम लोग यहाँ के नहीं हैं. That's why हम लोग जल बिना मछली के जैसे हम लोग तड़प रहे हैं, इसलिए that's the reason. हाँ, कोई बता सकता है एक स्टोन क्या सेवा कर सकता है भगवान की? Yes, he will call Lord. जहाँ पर पानी है, पाँव नहीं गीला हो जाए, वो पानी बोलेगा अच्छा मेरे को नहीं गीला करने दिया, तो I will follow God. किसी तरह से उनके पाँव गीले करूंगा मैं ना. So there is always a competition वहाँ पर होता है. Everything has a, even जो घास है ना, grass has a thing. और गोलोक वृंदावन में ना कोई भी ये नहीं चाहता है, अगर एक भंवरा बोल रहा होता है ना, तो कोयल और पीकॉक ये सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि भंवरा हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि आप करो ग्लोरिफिकेशन, आप करो ग्लोरिफिकेशन. और यहाँ पर क्या होता है, मेरे को करना है, मेरे को करना है. गार्लैंड किसको बनाना है? मैंने बनाना है. आज मेरी सर्विस है. मेरी सर्विस कैसे ले लिया आपने? नहीं है, टेम्पल में भी होता है, अरे मेरी सर्विस ले गए. ऊपर वहां अपोजिट होता है. अपोजिट कैसे होता है कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग सर्विस, कि आपकी वजह से एक्चुअली क्या हुआ कि एक भंवरा एक anyway that story is a little anyway not for today. I'll definitely talk about that story क्योंकि वो next उसमें आएगी, फिर मैं बताऊंगा. Anyway, तो हर किस आर नेवर नहीं वही पोजीशन मिलेगी. हाँ, unless you want to do another service, that's no problem. क्योंकि variegated, हाँ, there is so much variegatedness वहाँ पर कि anybody can do any service. एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सपोज हम लोग फॉर एग्जांपल अभी मैं जाता हूँ है ना गोलोक, मैं यहाँ से गया वैकुंठ धाम है ना, जय विजय मुझे रोकेंगे, हाँ भाई कहाँ, हो गया मेरा है ना, भगवान ने बुला लिया. अच्छा तो सेवा करोगे? हाँ करूंगा, लेकिन सिर्फ खिचड़ी बना सकता हूँ मैं, बाकी मेरे से कुछ मत कराओ, मुझे सफाई नहीं होती बस. तो जय विजय बोलेंगे एक काम करो, अबाउट टर्न लो, वापस जाओ, आना फिर नेक्स्ट टाइम कभी आओगे तब बात करेंगे. फिर हमने बहुत जन्म मैंने लगा दिए, फिर वापस गया. अब क्यों बोला, अरे आगे, हाँ आगे, क्या करोगे? बोलो कुछ भी दे दो कर लूंगा, आप जो बोलो दे दूंगा. बोला अच्छा बहुत समझदार हो, एक बार में समझ गए. अच्छा लेकिन एक काम करना ना, आशीष प्रभु नहीं होने चाहिए वहां पर, मेरी बनती नहीं उनसे. एक काम करो, अबाउट टर्न निकलो है ना. फिर वापस हजारों जन्म लग गए, फिर वापस गए. हाँ भाई आगे, हाँ जी आगे, क्या करोगे? बोले जो बोलो करोगे. और कोई और रिक्वायरमेंट है? बोले कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी, बस अब आने दो, जहां जो सेवा देनी है वो करूंगा, जो करोगे वो कहोगे मैं करूँ. ठीक है, नाउ यू आर वेलकम. दैट्स व्हाट हैपेंस ओवर देयर. ऐसा नहीं है कि हमारे मन में अगर एक भी डिवोटी के लिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वी डोंट कॉल इट टू गो बैक. लेकिन हम लोग को पूरी जिंदगी ये नहीं निकालनी कि हमारे मन में से डिवोटी के लिए वो निकालते रहे. हमारा काम क्या करना है, जैसे ग्लास है ना, गंदा पानी है, जैसे आपने भेजा था जो गंदा पानी है, उसको साफ करने का तरीका ये नहीं है कि उसमें एक एक करके निकालो ऐसे. उसमें सिर्फ चैंटिंग करते रहो, अपनी साधना करते रहो, धीरे धीरे पानी चेतो दर्पण मार्जना भग महादवा निरभावना, अपने आप सब साफ हो जाएगा, है ना. ओके, who wants to read this? Actually, I will read the verse. आप लोग पीछे पीछे रिपीट करना. यह है भगवत गीता 8.17. सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्रा विदो जनः सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्रा विदो जनः. Now who wants to read? Prabhu, you want to?
For the human calculation, 1000 gas ages taken together from the duration of Brahma's 1 day. And such also is the duration of थोड़ा पास में प्रूव. The duration of the many moons is limited. It is manifested in cycle of kalpas. The kalpa is the day of Brahma, and 1 day of Brahma consists of 1000 cycles of 4 yugas or ages: Satya, Treta, Dwapar, and Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom, and religion. There be practically no ignorance and vice. And the yuga lasts 17400 years. In the Treta Yuga, vice is introduced, and this yuga lasts 12960 years. In the Dwapar Yuga, there is a even greater decline in the virtue and religion. Vice increase, and this yuga lasts 8600 years. And finally, in Kali Yuga, the yuga have now been experiencing over the past 5000 years. There is an abundance of strife, ignorance, religion, and vice. True virtue being practically non-existent, and this yuga lasts 4200 years. Keep reading, Prabhu. In Kali Yuga, vice increases to such a point that at the termination of the yuga, the Supreme Lord himself appears as the Kali Avatar, when which the demon saves his devotees and commences another Satyuga. Then the process is rolling again. These 4 yugas, rotating 1000 times, comprise 1 day of Brahma, and the same number of compromise 1 night. Brahma lives 100 of such years and then dies. These 100 years by the earth calculation total 311 trillion and 40 billion each years. By these calculations, the life of Brahma seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of the eternity, it is a brief and a lightning flash. In the causal ocean, there are innumerable Brahmas rising and disappearing like a bubble in the Atlantic. Brahma and his creation are all part of the material universe, and therefore they are in constant flux. In the material universe, not even Brahma is free from the process of birth, old age, disease, and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe. Therefore, he at once attains liberation. Elevated sannyasis are promoted to Brahma particular planet, Brahmaloka, which is the highest planet in the material universe, and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planetary system. But in the due course, Brahma and all inhabitants of Brahmaloka are subject to death according to the law of material nature. Let's look at this video. हरे कृष्णा मित्रों, तो भाई आज हम लॉर्ड ब्रह्मा की लाइफ की ड्यूरेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो आपको बताएगा कि ब्रह्मा की लाइफ कितनी लंबी है और हम ह्यूमंस जो इतना प्राइड से भरे रहते हैं कितने छोटे हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके मित्रों, तो अभी जो समय चल रहा है वो है कलयुग, जिसकी एज 4,32,000 ईयर्स है। और क्योंकि अभी कलयुग को सिर्फ 5,000 साल हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि हम करीब यहाँ पर हैं। जो युग पीछे गया है उसे बोलते हैं द्वापर युग, जिसकी एज कलयुग से डबल है। और द्वापर युग के अंत में अराउंड यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। उससे पहले चल रहा था त्रेता युग, जिसकी एज कलयुग से ट्रिपल है। उसमें वामन, परशुराम और श्री राम ने जन्म लिया था। और सबसे पहले आता है हमारा सतयुग, जो कि कलयुग से 4 गुना ज़्यादा लंबा है। इस युग में मत्स्य, कुर्मा, वराह और नरसिंह प्रकट हुए थे। इन सभी युगों को एक साथ हम बोलते हैं एक दिव्य युग या एक चतुर्युग। अब यहाँ तक तो सभी को पता रहता है, यहाँ से आगे आप सभी को अपने दिमाग को थोड़ा एक्सपैंड करना होगा। पर उससे पहले जल्दी से भक्ति टुडे को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा आगे भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। मित्रों, एक मनु की एज में टोटल 71 चतुर्युग होते हैं, विच कम्स टू अराउंड 30,67,20,000 ईयर्स। तो हमारा एक चतुर्युग एक मनु की एज का सिर्फ 1.4% होता है।
और हर मनु के टेक ओवर करने से पहले और रेजिग्नेशन के बाद संध्या होती है, जिसकी एज एक सतयुग के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संध्या क्या होती है। मित्रों, मनवंतर संध्या के समय पूरी पृथ्वी जल में डूबी रहती है। ब्रह्मांड और पृथ्वी का जल में डूबना और निर्माण एक दूसरा टॉपिक है, जिस पर हम दूसरी वीडियो अवश्य बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को बोलते हैं कल्पा, जिसमें 14 मनु के जीवन काल और 15 संध्या आ जाती हैं। तो भाई ब्रह्मा के एक दिन का टोटल बनता है 432 करोड़ साल। और याद रहे, यह सिर्फ दिन की बात हो रही है, इतनी ही लंबी रात भी होती है। मित्रों, ये सिर्फ ब्रह्मा जी की लाइफ का एक दिन था। उनकी लाइफ की ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें 36,000 कल्प आते हैं और उतनी ही रातें। तो टोटल 72,000 कल्प और रातें, और वो ब्रह्मा की 100 साल का जीवन कहलाती है। भाई कंफ्यूज अभी बिल्कुल नहीं होना है, आराम से समझना है, क्योंकि कंफ्यूजन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी की टोटल लाइफ बनती है 72,000 इंटू 432 करोड़, जो कि जो भी है हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, पर इंग्लिश में बोले तो 311 ट्रिलियन ईयर्स। मित्रों, चलो अब कुछ कंपैरिजन करते हैं। इस पूरी दुनिया की जीडीपी आप सोच सकते हैं कितनी है? 90 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि ब्रह्मा की एज के सामने कुछ भी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में सिर्फ एक बार प्रकट होते हैं। तो आप सब सोचिए कि हम सब कितने लकी हैं कि सिर्फ 5,000 साल पहले कृष्ण यहाँ पर थे। और जब ब्रह्मा जी खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो हम क्यों नहीं बोल रहे? स्वयं विचार कीजिए। वीडियो को लाइक करें, फैमिली के साथ शेयर करें और भक्ति टुडे को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। It's a very good channel, by the way. Okay, what is a kalpa? उसमें कितने युग होते हैं? अच्छा, what are और 4 युगस कौन से हैं? और उनकी एज मैं पूछूंगा नहीं, उसमें बहुत डिफिकल्ट है। सॉरी, हाउ मेनी इयर्स टोटली डज लॉर्ड ब्रह्मा लिव? 300 years, हाँ। और अर्थ ईयर में कितना है? 311 ट्रिलियन ईयर्स समथिंग लाइक दैट। Why is even the extraordinary life of Brahma insignificant ultimately? He dies after what? That's it. आपको पता है, there is an insect, उसकी लाइफ, there is a, कुछ इंसेक्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उनकी लाइफ होती है अराउंड 4.5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स। सो उनका, तो वो अगर हमारे सामने आए तो बोले वो हमें देखेगा तो क्या बोलेगा, ये तो ब्रह्मा जैसे हैं ना, तो ये तो 100 साल जीत रहे हैं, उसकी तो 5 सेकंड है। तो ब्रह्मा जी हमारे लिए वही है ना। Anyway, what is the so how does Lord Brahma attain his liberation? That's the only way. There is no other way. है ना? What is the special about Brahmaloka? Who attains to Brahmaloka? Yes. And what is the special about Brahmaloka? क्या special है? Yes. हाँ, और एक्चुअली क्या है, ब्रह्मलोक होना है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं हर रात को, तो सारे के सारे जो जीव हैं वो विष्णु के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक और तपलोक, ये 2 लोग बचे रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। वो तब नष्ट होते हैं जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है ना। That's the only difference. And why is attaining Brahmaloka too insignificant? It's temporary. और कितना temporary मैं बताता हूँ। When Vishnu भगवान breathes out, है ना, जब भगवान breathe out करते हैं, उनकी एक ब्रेथ जब बाहर निकलती है, सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। उनकी एक ब्रेथ में सारे ब्रह्मांड बनते हैं, सारा क्रिएशन होता है, फिर अल्टीमेट डिसोल्यूशन होता है, और फिर वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो एक उनकी जो ब्रेथ होती है ब्रह्मा के 100 साल के बराबर होती है। दैट मीन्स भगवान की जो एक ब्रेथ है, तो हमारे इसमें भी बोलते हैं ना कि टाइम इज रिलेटिव, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने जो करी है, उसमें भी टाइम इज रिलेटिव। इट्स रिलेटिव, डेफिनेटली रिलेटिव, बिकॉज अलग अलग लोक में अलग अलग तरीके का टाइम चलता है। तो भगवान का जो टाइम है एक्चुअली, ये तो भगवान कृष्ण की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं,
भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, वो उनकी एक ब्रेथ ब्रह्मा के 100 साल के बराबर है। तो कृष्णा की तो भूल ही जाओ, उनका तो कुछ करी सोच ही नहीं सकते ना। टाइम डज नॉट इवन एग्जिस्ट ओवर देयर। Okay, now I'm going to go back to that slide. Yeah. Now, oh sorry. Okay, so we want to talk about kids. देखो हमारे पास अभी हम लोगों ने सेवा के बारे में इतनी सारी बात करी ना। I wanted to have a pause इसलिए कि now there are some services जो हमें दिखती नहीं है, but it is very critical to our भक्ति रक्षा। एक सर्विस तो वो है, वो खाने जो प्रसादम आता है, ठीक है, वो बहुत क्रिटिकल है। और दूसरा है जो बच्चों को संभालते हैं। अगर बच्चों को कोई नहीं संभालेगा तो वी कैन नॉट सिट हियर एंड लिसन, इतनी देर हम लोग बात भी नहीं कर पाएंगे ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेवा एंड वी वांट 2 वॉलंटियर्स। हर बार ना 2 चाहिए होंगे, क्योंकि एक बड़े बच्चों को देखने के लिए और एक छोटे बच्चों को देखने। हाँ हाँ क्लास में बैठो, सुनो जो भी बंदा को आ रहा है। हाँ तो हाँ बोलो बोलो। हाँ, जैसे हमारे ग्रुप में बड़े बच्चे छोटे बच्चे हैं, तो वी कैन हैव लाइक स्मॉल ग्रुप्स वेयर बड़े बच्चे छोटे बच्चों को असिस्ट करें, टीचिंग देम समथिंग लाइक। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, आप लोग जो आपको ट्राई करना हो करो, नो प्रॉब्लम। हाउएवर द ओनली रिक्वेस्ट इज कि वी नीड समवन हु कैन लाइक यू नो आगे होके वॉलंटियर करके, लाइक यू नो यू डोंट हैव टू डू इट एवरी फ्राइडे, but if someone can take 1 Friday a week, 1 Friday a month, someone can take another Friday a month, kind of stuff, you know, we can share the load. Now I'll ask another question. What is more important? What is the bigger service, sitting here and listening or watching the kids? Why? Because one person can watch the kids will help so many people, है ना? So it is, तो हम लोगों को we have to start putting our devotional hat ना। और ऐसा नहीं है कि जरूरी जो हम लोग बोल रहे हैं वही, आपको भी कुछ लगता है कि there is something that you can do to support this group। दूसरी चीज क्या है, कई बार लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि you know, अरे आशीष ब्रो आपकी भक्ति कैसे चल रही है? और वो बहुत अच्छी चल रही है। अरे अच्छी कैसे चल रही है? मंदिर में तो आपकी सेवा ही नहीं है, आप तो सिर्फ भक्ति रक्षा में सेवा करते रहते हो। जब तक मंदिर में नहीं आओगे तो आपका प्रोग्रेस कैसी होगी? Is it right? Very good, very good. क्यों? जो बच्चे उनके साथ में सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हाँ नहीं, गुड। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको, अगर someone is telling you कि आपको मंदिर आना जरूरी है प्रोग्रेस के लिए, मंदिर में सेवा करना, मंदिर आना तो बहुत अच्छी बात है, you should go to temple, लेकिन मंदिर में सेवा करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वरना आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? What would you tell them? कोई भी हो बोलेगा। Thank you for letting us know. It's a very politically correct answer. Thank you for letting us know. Thank you very much. We will. आप वो नेक्स्ट टाइम फोन करके कहा बोले मैं वही हूँ, दिखना है मेरा हाथ नहीं दिख रहा, I'm just here. Anyway, so we should tell them because sometimes, और एक और चीज, one more thing. If Ashish Prabhu is doing something for the Bhakti Vriksha, is asking you to do something, and temple के जो head पुजारी वो आके आशीष प्रभु बोलते हैं यार मेरे लिए कर दे, what should Ashish Prabhu do? क्यों? That's correct. And why is Bhakti Vriksha so important? Why is it so important? क्यों है important? This is how we growing. ये हमारा एक, this is हमारा जो आगे की, हाँ हमारे आगे जितने भी, even अगर हम लोगों को आगे जन्म भी लेने हैं ना, उनकी सबकी नींव अभी रखी जा रही है। This is the most critical part. अच्छा, फिर कोई बोलेगा अरे यार साक्षी माता जी आप तो यार भक्ति शास्त्री हो, आप क्यों क्या आपको क्या जरूरत है भक्ति इसमें, भक्ति माता जी? तो what would you say? माता जी आप क्या बोलोगे, क्या जरूरत है आपको? हाँ, और anyone else? That's very good. और knowledge लेने के और क्या? Very good, very good. आप क्या बोले थे? हाँ?
Thank you for letting me know. सर्व कर, exactly right, सर्व करने के लिए। और कुछ? Required because it's very inspiring for others. ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे तो we won't strive to become. Yeah. Actually, that is another thing. We all have to. देखो preaching का क्या मतलब होता है? Preaching is 24/7, but only speak when it's absolutely required. That's preaching, है ना? आप तभी बोलो जब required हो, बाकी everything has to be through our behavior. And हमने भी देखा है, बच्चे, kids will not do what you say, they will do what you do, है ना? They look at you, है ना? तो हमें preaching भी ऐसे करनी है. So remember, और जरूरी नहीं है आपको कोई भी senior devotee भी temple का आके ऐसे बोलता है कि नहीं, you should come to temple, you know, अपने भक्ति रक्षा को छोड़ के. That's absolutely rubbish. You don't have to say that's absolutely rubbish. You can just tell them, thank you for letting me know. Thank you for letting me know. But yes, you know, I will. And दूसरी बात, if there is a contradiction, what should you do? अगर if I'm saying something and someone in the temple is saying something, temple का senior person कुछ बोल रहा है, what should you do? It's two different things. दोनों अलग-अलग चीजें बोल रहे हैं. What should you do? Huh? Clarify how? हाँ, बिल्कुल सही. Call a spade a spade. और क्या कर सकते हैं? Depend कर रहा है क्या बोल रहा है. अगर कोई प्रभु दिखे ना तो उनको झापड़ मारना. कोई ऐसा बोल रहा है, that's a different thing, है ना. तो you. But अगर कोई contradictory in the sense, कोई बोल रहा है नहीं, you should go to temple, and I'm telling you to come to Bhakti Raksha. You should tell them. Brijesh Prabhu said to me, he specifically told me this is more important for me, है ना. फिर अगर उनके पास कोई और reason है, then you can come and talk to me. ऐसे Brijesh Prabhu उन्होंने ऐसा बोला था, can you talk to him, because आप दोनों decide कर लो मेरे को क्या करना है. Whatever you tell me, I'll do it. Be very open and honest. Don't let anybody give you something where अगर आपको कोई हमारे इस devotional family से अलग ले जाने की कोशिश कर रहा है, that means ऐसा नहीं उनका intention खराब है, it means that there is some miscommunication somewhere. And ऐसा लोगों को क्या लगता है हम devotional service में हैं तो no politics will happen. ऐसा होता है? Politics is everywhere. क्यों? Why is politics in devotion? We are human beings, you know. Exactly right. और जो उस level पे पहुंच जाते हैं ना, the people who are on that level of devotion, there is no politics because you are doing Raga Nuga Bhakti. You know, it's not Vaidhi Sadhana Bhakti anymore. It's ecstasy. So it's always in bliss. And किसी ने आके कुछ बोल दिया, तेरे को चाहिए तू ले जा. वो बोले थे ना, मत हो जाते हैं. खुली है, तिजोरी खुली है, जिसको जो ले जाना ले जा. Second thing is कि if you guys have any questions or anything, अगर आप लोगों को कोई contradictory चीज मिल रही है, please come and talk to me. There is nothing wrong in doing that. There is no Vaishnava अपराध in it. If I am saying something that आप लोगों को offensive feel हो रहा है, and you don't feel comfortable talking to me, you go and speak to someone senior and tell them कि ब्रिजेश प्रभु ऐसा बोल रहे थे. That's not a Vaishnava अपराध. What is Vaishnava अपराध? When you have a bad intent, है ना? Envy. And if मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो actually true नहीं है, that is a Vaishnava अपराध, है ना. कहते हैं ना gossip नहीं करनी चाहिए. Why avoid gossip? क्योंकि inadvertently निकल ही जाता है. कोई suppose किसी ने मुझे ABCD बोला, तो जब मैं वो ABCD बोल रहा हूँ तो साथ में ABCD E भी आ जाएगा. By that time वो घूम फिर के पहुंचेगी तो मैंने तो Z1 Z2 भी चला जाएगा माता जी. So that's why we have to be very careful. Chinese whisper ऐसे होते हैं. So remember, I am here to serve and I'm telling you, आप में से कोई एक भी person भक्ति कक्षा में आ रहा होगा ना, जब तक भी आएगा, I'll be here. Even one family भी नहीं बोल रहा हूँ. Even one person is here, I'll be here. And जो भी अगर आपको पता चल रहा है कि भक्ति रक्षा बंद हो रहा है, this is all nonsense. It's not. I'm not going anywhere. हम लोगों का प्लान था एक और भक्ति रक्षा स्टार्ट करने का, लेकिन now I've got मेरे को confirmation दिया है टेम्पल ने that I should not leave this group until and unless each one of us, there is no one, like everybody is initiated, either initiated or
if even one person is coming, I should continue this, and I will do that. I have no problem. I think this is मेरे लिए this is a very purifying thing, and I'm feeling I'm extremely grateful. आप सब एक बंदे के लिए, because of all of you, I get to read, I get to introspect, and मेरे को ऐसा discussion करने का मौका मिलता है, इतनी नई चीजें सीखने को मिलती है ना. I'm very extremely grateful to you guys. So that's all I wanted to talk about. Anybody else has any questions, comments? Sorry. Yes, sorry. The next one is 7th April. Mata ji, आपके घर पे ना? So 7th April, we will have a class picnic. Easter Monday को मैंने उसमें डाला है Easter Friday, but Friday को मेरे Supreme Court से order आ गया कि I can't do Friday क्योंकि there is something else planned. So Monday मैं करूँगा. I'll put a message. Is that okay? किसी को Monday से problem है क्या? Monday. Picnic. है ना? It's a public holiday, but we'll do picnic during the day. है ना? Ram Navami is on 30th of March. And we have spoken about kids to volunteer. Anything else? Next. Sorry. Thank you. Next week is on 14th, है ना? 24th को गुरु महाराज देवानंद स्वामी महाराज विंडम में क्लास दे रहे हैं भक्ति वृक्षा ग्रुप्स के लिए. I've already given them numbers. मेरे पास आए नहीं थे, मैंने पहले ही दे दिया उनको, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं अभी वो डालूंगा एक. So you have to send a RSVP. उसमें एक QR कोड है, उसको स्कैन करके उसमें आपको डालने कितने RSVP है ताकि प्रसादम का इंतजाम हो सके. तो नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो ऋचा माता जी के घर नहीं होगी. We will go over there. We all will go as a family, spiritual family. We'll hang out over there. और yes, और आप लोग कोऑर्डिनेट कर लेना अगर आप लोगों को सब लोगों को कारपूल करके भी जाना हो तो you can do it. Yes, माता जी. Sorry. No. Decelebration in Verbi ना. Hoppus Crossing. Sorry, not Windham. Hoppus Crossing. मैं डिटेल भेज दूंगा. Hoppus Crossing. हाँ, ठीक है. Thank you. है ना? तो वो Hoppus Crossing में है. So we'll do that. और कुछ मैं बोला? No, we can bring anyone. You can bring anyone. It is for Bhakti Raksha class, but he wants to have as many new people as possible. Yes, and Bhagavad Gita is happening as well. Prabhu, Mata ji ko dena. Hare Krishna, everyone. Anyway, so 45th से भागवत सप्ताह है हमारे घर. all are most formally invited, so 14th को स्टार्ट होगा तो Friday और next Thursday तक होगा. The person who is coming वो राधा गोविंद दास गोस्वामी के महाराज के डिसाइपल हम लेकर तो एक कॉल करें. वो काफी सारे उसके जुहू बीच में जुहू टेम्पल में भी 10 years तक